ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بلاول بھٹو کا تاریخی فیصلہ، فاطمہ متانی فشریز کی چیئرپرسن مقرر۔ رپورٹ حاکم علی دل، کیمرامین ریان علی دل۔ کراچی، روزنامہ حمایتی نیوز۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک تاریخی اور انقلابی فیصلہ کرتے ہوئے سندھ فشریز کی چیئرپرسن کے عہدے پہ سمندری ساحلی پٹی سے تعلق رکھنے والی محنت کش خاتون فاطمہ متانی کو تعینات کر دیا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ روزنامہ حمایتی نیوز کے نمائندے حاکم علی دل جب ساحلی پٹی پہ عوامی رائے جاننے پہنچے تو ماہی گیروں اور مقامی لوگوں کے چہروں پہ خوشی اور اطمینان نمایاں تھا۔ عوام نے بلاول بھٹو کے اس اقدام کو محنت کش طبقے کے لیے امید کی کرن اور خواتین کی شمولیت کو ایک مثبت سنگ میل قرار دیا۔ اس موقع پہ پیپلز لیبر بیورو ڈسٹرکٹ ملیر کے نائب صدر نواز علی حمایتی، سوشل ورکر علی خاص خیلی، باڈی ممبر شبیر ٹالانی سمیت اساتذہ، خواتین اساتذہ بھی موجود تھیں، جنہوں نے فاطمہ متانی کو چیئرپرسن مقرر کیے جانے پہ مبارکباد پیش کی۔ فاطمہ متانی کی کامیابی کے پس منظر میں ان کے والد یوسف کڈانی کی انتھک محنت اور جدوجہد شامل ہے۔ یوسف کڈانی ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ رہے اور ایک بار نادانستہ طور پہ بارڈر پار کرنے پہ بھارتی جیل میں 1 سال قید بھی کاٹنی پڑی۔ رہائی کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھرپور توجہ دی اور بیٹی کو یہی نصیحت کی کہ ترقی کا راز تعلیم میں ہے۔ فاطمہ متانی نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ والد کے شانہ بشانہ محنت کی تدریسی خدمات انجام دی، ساحلی علاقوں کے غریب سکولز کے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ان کے سماجی خدمات اور تعلیم کے فروغ کے عزم کو دیکھتے ہوئے بلاول بھٹو نے انہیں سندھ فشریز کا چیئرپرسن مقرر کیا۔ ساحلی عوام کے مطابق یہ فیصلہ خواتین کے بااختیار ہونے اور ماہی گیروں کے ترقی کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ بات کریں شہر قائد کی، ابھی میں موجود ہوں ریڈی گوٹ اور یوتھ سی اپنا ٹاؤن ابراہیم حیدری، تو پسماندہ علاقہ ریڈی گوٹ کی آج بات کرتے ہیں، جو سمندر ساحل کی پٹی پر ہی ہے، قدیمی گوٹ بھی ہے، ریڈی گوٹ کے نام سے مشہور بھی ہے۔ اس کے بچوں کے بارے میں یہاں جو پڑھائیاں ہو رہی ہیں، بچے بالکل جو جن کو پڑھائی نہیں ہوتی وہ روڈوں پہ مجبور ہیں آئس پینے پر، ہیرون پینے پر۔ یہاں پر کتنی پڑھائیاں ہوتی ہیں، جیسے ابھی یہاں کی جو چیئرمین بنی ہے اپنا فاطمہ میڈم فاطمہ بنی ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ تو اسکول جتنے بھی گورنمنٹ اسکول، پرائمری جو اسکول ہیں، ان کے بارے میں پوچھیں گے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم بہن، بہت عرصے کے بعد برامدری کو کچھ حق ملا ہے کہ آپ کو MD مقرر کیا ہے، چیئرمین فشری کا۔ تو یہاں کے لوگوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ادھر کے لوگ تمام بہت پیچھے ہیں، یہ کراچی کے وارث بھی ہیں، پرانی آبادیاں ہیں، پر ادھر کے لوگوں کی روزگار کے حوالے سے جہاں ادھر کے لوگوں کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے، ذرا بتائیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، عادی فریار کا، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے یہ ذمہ داری دی۔ یہ ذمہ داری ہے اور میں اس کو جو ہے وہ پوری اپنی کوشش کروں گی کہ اس کو جو اچھے طریقے سے نبھاؤں۔ اور سب سے پہلے یہ کہ یہ ہمارا ماہی گیروں کا پاکستان میں واحد ادارہ ہے اور میرا مقصد یہی ہے کہ میں اس ادارے کو مضبوط کروں۔ یہاں پر KT بندر سے لے کر کراچی تک، مبارک ولیج تک جو ہے ہمارے ماہی گیر جو ہیں اپنا فش کیچ لے کر یہاں پر آتے ہیں اور ان کا مارکیٹ کے مسائل ہیں۔ ہمارا 50% جو مچھلی ہے وہ KT بندر سے لے کر کراچی تک یہاں تک آتی ہے۔ تو ان کو جو رستے میں جتنے بھی مسائل ہیں، پولیس ان کو تنگ کرتی ہے، تو وہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، پولیس کے ساتھ مل کر ان مسائل کو حل کریں گے تاکہ ہمارے ماہی گیروں کو تحفظ مل سکے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے اور ہمارے قیدی ماہی گیر ہیں جو اریسٹ ہو جاتے ہیں سرکری کے تنازع پر، انڈیا اریسٹ کر لیتا ہے اور ان فیملی پیچھے جو ہوتی ہیں وہ بہت سفر کرتی ہے، تو ان کی جو ہے وہ منتھلی مدد کے لیے اور ان کے راشن کے لیے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ویلفیئر کا کام جو ہمارا بند پڑا ہوا تھا وہ 1.5 سال سے، وہ بھی میں نے جو ہے وہ اس کو آن کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے ماہی گیروں کے مسائل ہیں مارکیٹ کے حوالے سے، وہ ان کو جو ہے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ماہی گیر جن کا ویلفیئر کا کام تھا، جو
मरीज़ जिनके इलाज होते थे, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, हमारे माही गीरों के बच्चों को जो है शादी के जहेज़ के पैसे मिलते थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको, तो वो हमने जो है वो सिलसिला फिर से शुरू करने का है। बहुत मेहरबानी भाई। जी, बात कर रहे हैं उसी समुद्र की साहिल पट्टी की, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो मालूम का इस इलाके पे, इस जगह पे जो रोजगार होता है, उसके मासूम बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो तालीम से महरूम है। ये अभी जो चेयरमैन बनी है फातिमा मजीद, उसने बड़ा उठाया है, वादा किया है इस रेडी कोट की आवाम से, तो मैं इंशाल्लाह इस मायू गिरूंगा और इस बेड़ी पे जो लाठी पे काम करने वाले जितने भी माहूगीर हैं, उनके गरीब बच्चे हैं, उनको सबको मैं दाखिला दिलवाऊंगी। जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनके अंदर मैं दाखिला दिलवा कर उनको मैं पढ़ाई तक पहुंचाऊंगी। और ये मैं कैमरा मैन हो सके देखा, ये पूरा समंदरी इलाका है और यहाँ सिर्फ लाचे लाचे हैं। और यहाँ पर जो लाचे हैं तो इसमें सिर्फ माहूगीर होते हैं जो सिर्फ मच्छी का काम करके अपना पेट गुजारा करते हैं। हमारे साथ यहाँ का जो टीचर है मास्टर साहब, उससे ज्यादा राय लेते हैं। तो इस रेडी कोट के अंदर इस माहूगीरों का और इस गरीबों का कितने बच्चे जो हैं जो ऐसे रोडों पे घूम रहे हैं और उनको तालीम नहीं है, वो फिर नशों में लग जाते हैं, आवारा गर्दी में लग जाते हैं। तो ये फातिमा मस्जिद का वादा है कि ऐसे में कभी भी मासूम बच्चे माहूगीरों के हैं, मैं उनको आवारा गर्दी या नशे पे लगने नहीं दूंगी। जितनी भी कोशिश करूंगी मैं उनको जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं गवर्नमेंट के, उनके अंदर मैं उनको दाखिला करा कर उनको मैं तालीम दिलाऊंगी। जी जी सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सर नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है और मैं मास्टर हूँ यहाँ का और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर इधर गरीब तबके से जहाँ ये पसमानी इलाका है समुद्र साहिल पट्टी का, तो उसमें गरीबों के बच्चे कितने स्कूलों में तालीम ले रहे हैं? यहाँ बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सहूलत है वो प्राइमरी स्कूलों की है, लेकिन उन स्कूलों की भी हालत जो है वो इतनी मुतमईन जोगी नहीं है कि जहाँ फैसिलिटी की बहुत कमी है, फर्नीचर की कमी है, टीचरों की कमी है। और यहाँ पे जो है वो बच्चे प्राइमरी तक पढ़ते हैं, उसके बाद जो है वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि आज आगे की जो सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें भी टीचर नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं। फिर गुर्बत है और गुर्बत के साथ साथ जो है ना वो फिर वालिदैन ये कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा किश्ती में चले और हमारे साथ हमारा हाथ बटाए और मेहनत मजदूरी करे। तो सर ये यहाँ पे सिर्फ माहूगीर गरीब होते हैं, कदीमी गांव है रेडी कोट, इनके अगर मासूम बच्चे जो आवारा गर्दी से हटकर अगर ये सरकारी स्कूलों में तालीम ले तो उनका मुस्तकबिल भी खुशहाल हो जाएगा और आगे भी बढ़ेंगे जिंदगी में। इंशाल्लाह हम तो शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे लोगों में जो तालीम की अहमियत है उसकी कमी है सोच में कि हम अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे बड़े लोग बनेंगे और उनमें शऊर आएगा। ये लोगों में शऊर कम है। और दूसरा यही है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है कि डिग्रियां लेके लोग फिर फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर मजदूरी करते हैं, तो लोगों की ये भी सोच है कि पढ़ लिख कर बच्चा क्या करेगा, उससे बेहतर है कि हमारे साथ जो है वो हाथ बटाए। अभी चेयरमैन जो बनी है फातिमा मजीद साहब ने वादा किया कि मैं जितने भी माहूगीर के गरीब तबके से जितना भी ताल्लुकात रखने वाले होंगे मैं उनको दाखिला दिलाऊंगी और स्कूलों में उनको पढ़ाने की कोशिश भी करूंगी। तो वो मिशन कैसा रहेगा? देखें, जहाँ तक सवाल है फातिमा मजीद का, तो शुरू से हम एक साथ काम करते रहे हैं और अभी तो खास तौर पर हम माहीगीर लोग जो हैं वो शुक्रिया अदा करेंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का कि उन्होंने एक ग्राउंड जो जानते हैं, रियलिटी जानते हैं माहीगीरों के मसाइल की, वहां से एक तारीख में पहली फीमेल जो है वो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरमैन मुंतखब हुई है। उससे पहले भी उसकी फातिमा मजीद की बहुत सारी कोशिशें हैं। वो जो है वो सारिन सख्त की भी सदर रही हैं। उसके अलावा पाकिस्तान फिशर फोक जो माहीगीरों के लिए तंजीम काम कर रही है उसकी वाइस प्रेसिडेंट हैं और टाउन इब्राहिम हैदरी की मेंबर हैं
डिस्ट्रिक्ट मलीर की पीपल्स पार्टी विंग की सदर हैं। तो अभी जो खास तौर पर पीपल्स पार्टी ने ये इनायत की है कि माहीगीरों की औरत को ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो चेयरमैन बनाई है, तो फातिमा मजीद जो है वो ग्राउंड की औरत है और ग्राउंड की रियलिटी को जानती है और बहुत पहले भी ये कोशिशें करती रही हैं। अभी उनके पास माशाल्लाह 2-3 अहदे हैं और वो बहुत मेहनती हैं और ग्राउंड के मसाइल को भी समझती हैं और उनके हल का फार्मूला भी है उनके साथ और हम उम्मीद रखते हैं माहीगीर लोग। जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फातिमा मजीद ग्राउंड की ये माहीगीर है, वो माहीगीर के मसलों को जानती भी है और उसको हल करने का भी फन उसको आता है और बहुत सोशल एक्टिव है। बहुत उम्मीदें हैं फातिमा मजीद के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें जितना भी फंड आता है वो सारा माहीगीरों का होता है और माहीगीरों के बहुत सारे मसाइल हैं। अगर जो ऐलानात आदि फातिमा मजीद ने किए हैं, अगर उसको ये काम करने दिए गए और उसको फ्री हैंड छोड़ा गया तो इंशाल्लाह माहीगीरों में बहुत तब्दीली आएगी। माहीगीरों के एजुकेशन के मसले हल होंगे, हेल्थ के मसले हल होंगे, बच्चों के मोबिलाइजेशन के मसले हल होंगे। तो सबसे पहले हम तो मोबिलाइज करेंगे लोगों को कि तालीम की अहमियत क्या है। इस पे हम जो है काम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, अभी उसी कश्ती के अंदर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहुंच भी चुका हूँ। तो माहीगीर हमारे साथ मौजूद है, ज्यादा राय उससे लेते हैं उसका क्या कहना। सर सलाह लो दे रफीक बा, अगर ये समाज आप बाहर लड़ रहा पढ़ाई के वजह स्कूल में तालीम हासिल कर ले अच्छा और समझेगा मां साला करे हुटी गाला है साथी गाला ना साला करे बहुत काम हुटी गाला अच्छा तालीम मिलेगा बोल के देखा मां बेरोजगार है क्या हुटी गाला है तालीम ये जो चेयरमैन फातिमा मजीद ऐलान किया था मायूगीरन के बारल के पढ़ाई की अच्छा समझो भले पढ़ायो अच्छा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले मायूगीरों का भी ये कहना है तो हमारे बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो इससे बेहतरी की बात क्या है। या अल्लाह सर छा चवणु चाहियो था इन हवाले सां। साईं, मुंहिंजो नालो नवाज़ अली दबलो आहे। ऐं रेडी ॻोठ जो रिहाइशी आहियां ऐं साबिक़ा जनरल काउंसलर बि आहियां ऐं पाकिस्तान फिशर फोक फोरम रेडी दबला यूनिट जो साबिक़ा सदर रहियो आहियां। ऐं असां घणी जिदोजहद कई फिशर फोक में, जीअं में पाकिस्तान फिशर फोक फोरम जे पूरे जेका तंज़ीम आहे ऐं उहिदेदार ऐं मेंबरनि खे पूरे पाकिस्तान जे मुबारकबाद थो ॾियणु चाहियां जो अदी फातिमा खे बिलाल साहब फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चेयरमैन बनायो आहे। असांखे ॾाढी ख़ुशी इन लाइ करे थी आहे त हिकु वाहिद इहो मौक़ो आहे जेको हींअर जेको जंहिंमें अदी फातिमा लेडीज़ जेका असांजे फिशरी जी जेका पहिरियों भेरो चेयरमैन थी आहे। असांजी रेडी ॻोठ में ख़ुशी जी लहर दौड़ी रही आहे ऐं हर कंहिंजे को ज़हन ऐं गुमान में अची वियो आहे त हाणे असांजो को न को जेको हल ज़रूरु थी वेंदा। जेको तालीम बि असांखे मिलंदी ऐं माहीगीरनि जा खोड़ सारा अंबार मसइला आहिनि जेके हाणे जेके हल थियण जी उमेद जेका थी आहे। जेको वॾी महिरबानी, शुक्रिया भाई। आज आपको कोई ढूंढ रहा था क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं हमारी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मुझे ढूंढ रहे थे और हमारा थोड़ा काम से निकले हुए थे। अभी कोट कासिम की तरफ जा रहा था, लेबर ब्यूरो के हवाले से कोई मीटिंग थी तो वहाँ जा रहा था। तो आप क्या फरमा रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ परवीन जो अभी चेयरमैन बनी है टाउन इब्राहिम हैदरी पर, तो रेडी कोट पसवान इलाका है समंदर की पट्टी का, वहाँ ऐसे लोग तादाद में जो वहाँ मौजूद हैं, जो बच्चे छोटे हैं वो तालीम नहीं कर पा रहे, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा फैसला हुआ है। बिलाल भुट्टो ने फिशरी के ऊपर चेयरमैन मुकर्रर की है फातिमा मुतानी, एक मेहनती खवातीन है जो लेडीज रिंग की सदर भी है, बरामदरी टाउन की मेंबर भी है। उसके अलावा उधर की महाजरों की जो मचेरों की तंजीम है उसकी चेयरपर्सन भी है। एक मेहनती खवातीन है
ये बच्चों के लिए ऑलरेडी रेडी, चश्मा गोट, ब्राह्मद्री और केटी बंदर, जितने भी साहेली पट्टी पे जितने गोट हैं, तो वहाँ पे जाके लोगों को लेक्चर भी देती है, घरों में जाके कि बच्चे पढ़ाओ, और वो उसके ऊपर ज्यादा टाइम देती है। इसके अलावा स्कूल के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, कई प्रोग्रामों में हम खुद भी गए हैं, तो ये इसका शौक यही है कि साहेली पट्टी के बच्चे पढ़े और हमारे जैसे अफसर बने। जिस तरह का ये बिलाल भुट्टो ने एक अच्छा फैसला किया, इसी अच्छे फैसले पे हम बिलाल भुट्टो को भी मुबारकबाद देते हैं, रेडी के साहेली पट्टी पे रहने वाले को भी मुबारकबाद देते हैं, खास तौर हमारी न्यूज को भी मुबारकबाद देते हैं कि ये हमेशा साहेली पट्टी की आवाज उठाती है। इसलिए हम फिर दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इनको इख्तियारत दे काम करने के लिए, ताकि सैली के पट्टी के लोगों के मसले हल करे। फिशरी के अंदर बहुत करप्शन होती है। अभी ये फातिमा मुतानी आई है, इंशाल्लाह ये करप्शन से पाक भी करेगी और महाजिरों के मसले भी हल करेगी। ये बहुत शुक्रिया। सही है। इनको दे हाँ, ये आप दे सही। तू भी आपको बाबा उदाहरण तू बदल मोह एडा कर मोह तो एडा कर ना बाप अर्जुन तो चैनल है।